زندگی کے اندر جو چیز ہمیں آسانی سے مل جایا کرتی ہے، یعنی بغیر محنت کے ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس اسلام آیا تو اسلام ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آیا، بلکہ رسول اعظم کی محنتوں کی وجہ سے، صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے، شہدائے کربلا کی قربانیوں کی وجہ سے، اولیاء کرام کی مہربانیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اسلام ہم تک دھیرے دھیرے پہنچا ہے۔ لیکن ہماری کوئی قربانی نہیں ہے، نہ ہم نے اپنی جانوں کو اسلام پر لٹایا ہے، نہ ہم نے اپنے مالوں کو لٹایا ہے، نہ ہم نے اس کی خاطر کچھ ایسا کام کیا ہے جو دنیا کے لیے عبرت نشان ہو جائے۔ ہمارا کچھ بھی اسلام کے اندر کردار نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہم کو آسانی سے ملا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اسلام تو وہ مذہب ہے، اسلام تو وہ دھرم ہے، اسلام و دھرم ہے کہ آج ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہر جگہ غیروں کے طریقے اپنانے کی کوششیں کی جاتی ہے، غیروں کے طریقے کو اپنانے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ جیسے شادی ہو تو شادی کے اندر غیروں کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، شادی ہو، بارات جانا ہو، سب جگہ پر غیروں کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے یہاں عقد خوانی ہو، اس میں بھی غیروں کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، مسلمانوں، کٹر سنی بریلوی سے مخاطب ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اعظم کے غلام ہیں، رسول پاک کے غلام ہیں، اور ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے، رسول اعظم نے، معلم انسانیت نے، اللہ کے نبی نے ہم کو صرف کپڑا پہننے کا طریقہ ہی نہیں بتایا، بلکہ چلنے سے لے کر پھرنے تک، اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، ہر چیز کا علم ہم کو بتا دیا ہے، ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، کوئی بزرگوں کو پڑھے تو ان کی تاریخ کا پتہ ہو، کوئی ان کو مانے، کوئی ان کو جانے، ان کا پتہ ہو تو معلوم ہو، لیکن ہم کو وہ نہیں معلوم ہے۔ آج بھی ہم کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں۔ ہم کو شاہ رخ کے بارے میں پوچھا جائے، ہمارا بچہ بتا دے گا، سلمان خان کے بارے میں بتا دیا جائے، اس کے بارے میں بچہ بتا دے گا، لیکن کسی بچے کو پوچھ کر اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بتا ہمارے رسول اعظم کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کی کردار کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ بچے ہرگز بتا نہیں پائیں گے، بچے ہرگز بتا نہیں پائیں گے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو سیکھا نہیں ہے۔ جب ہم نے نہیں سیکھا تو اولاد میں ابھی کہاں سے اسلام آنے والا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، اپنے عقل کو ٹھکانے لگاؤ، اپنے عقل کو سنبھالو، اپنے عقل کے گھوڑے ہر جگہ پر مت دوڑانے کی کوشش کیا کرو، اپنے عقل کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، بزرگان دین نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا، بزرگان دین نے اسلام کو نکھارنے کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑا تھا، بھائی بہن کو چھوڑا تھا، ماں باپ کو چھوڑا تھا۔ لیکن آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، آج ایسا دور ہے، کبھی یہی اسلام وہ دور ہوا کرتا تھا کہ مدینہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر کوئی کسی کی ایسی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ کوئی کھلم کھلا قرآن شریف کو پڑھ لیا جائے، کسی کی ایسی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھلم کھلا نماز پڑھ لے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کھلم کھلا وہ اذان دے سکے۔ لیکن رسول اعظم کی محنتوں کا نتیجہ، صحابہ کرام کی مشقتوں کا نتیجہ، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام آج ہم تک آسانی سے پہنچ چکا ہے، اور آج انہی کی بدولت ہم کھلم کھلا نماز پڑھ پا رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم اذانیں دے پا رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے پاس قرآن پہنچا ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ ساری کائنات نے مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی فطرت نے قدرت کو لچک دی ہے، اسلام کی فطرت نے قدرت کو لچک دی ہے۔ تم جتنا ہی اسے دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا، تم جتنا اسے دبانے
निकालने की कोशिश करोगे उतना ही निकला जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, बुजुर्गान दीन का मामला तो ये हुआ करता था कि अल्लाह अकबर, किसी की तरफ देख लेते थे तो उसको भी अल्लाह के करीब कर दिया करते थे। ये एक मर्द मोमिन की ताकत का आलम था, रसूल आजम के गुलामों का आलम था। मैं आपको बताता चलूं, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला एक बस्ती में, बल्क के बस्ती में आराम फरमा रहे थे। वहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ था, वहीं पर इबादत किया करते थे, अपनी खानका सजा ली, वहाँ पर आराम करते थे। लेकिन उसी बस्ती के अंदर, उसी शहर के अंदर एक फाहिशा औरत रहती थी, फाहिशा औरत रहती थी। अब वो फाहिशा औरत रहती थी, उसके पास रोजाना मर्द आना जाना किया करते थे, मर्द आना जाना किया करते थे। एक शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि हुजूर, ये कोई अच्छी बात नहीं कि जिस शहर के अंदर आप हो वहाँ पर एक फाहिशा भी मौजूद हो, वहाँ पर एक फाहिशा औरत भी हो। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद ने फरमाया कि फिक्र की जरूरत नहीं है, किसी चीज का गम ना करो, जब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। तुम मुझे पता बताओ वो औरत कहाँ रहती है, वो औरत कहाँ रहती है। अल्लाह अकबर। मुरीद ने बताया हुजूर, एक जगह पर छोटा सा गांव है, उसी जगह पर वो औरत रहती है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपने साथ मुसल्ले को उठाया, तस्बीह को उठाया, पानी का लोटा लिया और उसके घर की तरफ चल दिए, उसके घर की तरफ जाने लगे। जब जाने लगे तो रास्ते में लोग देखते रहे कि ये कौन जा रहा है। तो देखने वाले लोगों ने कहा कि ये तो कोई दुनियादार नहीं लगता है, बल्कि रसूल आजम का गुलाम लगता है, रसूल पाक का गुलाम लगता है। कि उनका चलना सुन्नत के मुताबिक हुआ करता था, उनका देखना रसूल आजम की सुन्नत के मुताबिक हुआ करता था। बहरहाल हजरत बायजीद बुस्तामी उस औरत के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी उसके दरवाजे पर बैठते हैं, औरत घर के अंदर होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन औरत देखती है कि सुबह से शाम होने तक आई, आज उसके पास एक भी मर्द आया नहीं है, एक भी मर्द आया नहीं है, एक भी मर्द आया नहीं। तो उसने अपने नौकर से कहा कि जाकर देखो तो सही, आज लोग क्यों नहीं आए हैं, आज लोग क्यों नहीं आए हैं। नौकर बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद दरवाजे पर नजर डालता है तो कहता है कि बाहर तो कोई पीर साहब बैठे हुए हैं, कोई पीर साहब बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहा कौन है, कहा बायजीद बुस्तामी है, बायजीद बुस्तामी है। कहा क्या करने आए हैं, कहा ये तो पता नहीं। अल्लाह अकबर। औरत बदतमीजी पर उतर आती है और कहती है कि जाकर बायजीद से कहो कि ये एक फाहिशा का घर है, ये कोई मस्जिद नहीं है। अगर तुझे अल्लाह अल्लाह करने का इतना ही शौक है तो मस्जिद में चला जा, मस्जिद के अंदर अल्लाह अल्लाह कर। यह अल्लाह अल्लाह करने की जगह नहीं है, बल्कि एक फाहिशा का घर है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद से जब नौकर कहता है कि हमारी फाहिशा मालकिन तुमको ये कहती है, तो बायजीद फरमाते हैं मुझे उस औरत से मिलना है, मैं तो उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। तो कहने लगा कि औरत बड़ी महंगी है, 200 से सोने के सिक्के के ऊपर से किसी से बात तक नहीं करती है, किसी से बात करना गवारा नहीं करती है। हजरत बायजीद फरमाते हैं अरे तुम 200 की बात करते हो, हम 2000 देने के लिए तैयार है, हमें उसके पास ले चलो, हमें उसके पास ले चलो। हजरत बायजीद बुस्तामी को उसके पास ले जाया गया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने उसको 2000 सोने के सिक्के दे दिए और सोने के सिक्के देने के बाद हजरत बायजीद फरमाते हैं कि औरत आज की रात तू मेरी हो गई है, आज की रात तू मेरी हो गई है। अब जैसा मैं कहूँगा वो तुझे मानना पड़ेगा, जैसा मैं कहूँगा वो तुझे मानना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। औरत ने कबूल कर लिया, औरत ने मंजूर कर लिया। हजरत बायजीद ने उससे फरमाया कि जाकर गुस्ल करके आ। औरत जाती है और गुस्ल कर लेती है और फरमाते हैं कि साथ में एक मुसल्ला भी उठा कर लाना, मुसल्ले को साथ लाना। जब मुसल्ले को साथ में लाती है तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अब गुस्ल भी हो गया, अब तुमने गुस्ल भी कर लिया है, अब मुसल्ला भी उठा लिया है, चल अब नमाज पढ़ना शुरू कर, अब 2 रकात नमाज पढ़। अल्लाह अकबर। जैसे ही फाहिशा औरत नमाज के लिए खड़ी होती है, नमाज के लिए खड़ी होती है और सजदे में जाती है, सजदे में
जाने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं और उठाने के बाद कहते हैं मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे ले जाना तेरा काम है, इसके आगे ले जाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। वो फाहिशा औरत अपने सर को सजदे में रखती है, इधर बायजीद बुस्तामी दुआ करते हैं, इधर हाथों का उठना था कि वो फाहिशा औरत बायजीद बुस्तामी की वजह से, बायजीद बुस्तामी की वजह से फाहिशा नहीं रही बल्कि अपने वक्त की सबसे बड़ी औलिया बन गई, सबसे बड़ी अल्लाह की प्यारी बन गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, इसीलिए तो कहा गया कि चाहे तो इशारों से काया ये पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। मेरा आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, ये मर्द मुजाहिद का अंदाज था, उसकी जिंदगी का अमल था, उसका एक रहन सहन था। लेकिन आज क्या हो गया, इस्लाम से दूरी बढ़ती जा रही है। जहाँ कहीं देखो मोबाइल के दीवाने बैठे हैं, जहाँ कहीं देखो बच्चे बच्चे जिसको इंग्लिश भी नहीं आती होगी उसके हाथों में एक मोबाइल पकड़ा दिया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हमने उसके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान शरीफ का पारा देना चाहिए था, उसके हाथों में पारा पकड़ाना चाहिए था। लेकिन हमने उसे दीनदार नहीं बनाया, हमने उसको दुनियादार बनाया है, हमने दुनिया की जिंदगी सिखाई है। अगर हमने उसे इस्लाम की जिंदगी सिखाई होती तो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम मरने के बाद लोग तुमको याद किया करते, मरने के बाद भी तुम्हारे बच्चों के नाम से तुमको जानते कि हाँ ये अदब वाला बच्चा जो देख रहे हो, ये रसूल आजम के गुलामों में देख रहे हो, ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक बाअखलाक किरदार बाप का बेटा है, बाप का बेटा है। इसीलिए अपने औलाद को दुनिया की आग में मत झोंको बल्कि उनको कब्र के अजाब से डराने की कोशिश करो। कब्र के अजाब डराओ, अल्लाह का अजाब दिखाओ, अल्लाह के अजाब के बारे में बताओ कि बेटा फला फला गुनाह करने से ये अजाब होते हैं, हमको ये सिखाना चाहिए। लेकिन मामला इसके बरअक्स हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, इसी की तरह आज एक बहुत ही बुरी रस्म जो सुन्नियों में आम हो चुकी है, बोले वह भी खबीस हमको उसके ताने देते हैं, कहते हैं कि संदलों के अंदर बाजा बजाया जाता है, अपने आप को रसूल आजम का गुलाम कहते हो, अपने आप को बरेलवी कहते हो, अपने आप को रसूल आजम का चाहने वाला कहते हो, और संदलों में करते क्या हो? अरे हमसे ज्यादा बेदबी तो तुम लोग करते हो, हमसे ज्यादा बेदबी तो तुम लोग करने से शुरू हो गए हो, हमसे ज्यादा गुस्ताखी तो तुम लोग करते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, अगर संदलों के अंदर, मेरा जुमला नोट कर लो, अगर संदलों के अंदर और शादी के अंदर, संदल और शादी के अंदर अगर बाजा बजाना सवाब का काम होता तो सबसे पहले तुम्हारी मस्जिद का इमाम संदल निकालता, तुम्हारी मस्जिद का इमाम तुमने सोचा भी नहीं होगा, इतना बड़ा बयान तुम्हारे गांव में लगा के दिखाते। लेकिन वो कोई सवाब का काम नहीं है, वो कोई सवाब का काम नहीं है, ना नेकी की दावत है। अरे उर्स तो वो होना चाहिए कि वहाँ कुरान की तिलावतें हो, उर्स तो वो होना चाहिए वहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो। अरे बदबख्तों, बाजा बजाकर किसी वली की मज़ार को तुम फायदा नहीं पहुँचाते हो बल्कि उसकी रूह को तकलीफ पहुँचाते हो, उसके जिस्म को तकलीफ पहुँचाते हो। बाजा बजाकर अल्लाह का वली खुश नहीं होता। तुम कहोगे कि अरे हाँ अजमेर में भी तो बाजा बजता है, अजमेर में बाजा बजता है, बड़े बड़े दरगाहों पर बाजा बजता है। तो मुझे बताओ हमारा मरकज अजमेर शरीफ नहीं है, हमारा मरकज बरेली शरीफ है, हमें बरेली पर चलना है, हमें अजमेर पे नहीं चलना है। और रही बात अजमेर की, तो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम कोई ये किताब ला के दिखाओ जिसमें लिखा हो कि हजरत गरीब नवाज ने बाजे के साथ संदल निकाला हो। एक किताब ला के दिखाओ जिसमें गरीब नवाज ने संदल धूम बाजे के साथ निकाला हो, या गौसे पाक ने, गौसे आजम ने इस अंदाज से संदल निकाला हो। नहीं,
संदल निकालने का ये तरीका नहीं है, बल्कि संदल निकालना और उर्स मनाना, अगर तुझे हकीकत में सही मानों में उर्स देखना है तो चल बरेली मेरे साथ, तुझे पता चल जाएगा उर्स किस अंदाज से मनाया जाता है, तुझे मालूम होगा और पता चल जाएगा कि हकीकत में उर्स कहते किसे है। उर्स वो होता है जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, बुजुर्गाने दीन की तारीख को अपने अंदर जज्ब करने का दिन होता है। और उसे क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि वो बुजुर्ग हमको याद रहे, वो हमको याद रहे और उनकी अखलाक की ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगी को अपने अंदर लाने की कोशिश करे, उनकी इबादत का जज्बा अपने अंदर लाने की कोशिश करे। उनके अंदर जितना अल्लाह का डर मौजूद था उस डर को अपने अंदर लाने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह अकबर, इस डर को साइड में फेंक कर लोग अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बुजुर्गों को खुश नहीं करते, बल्कि अपने आप को खुश करने के लिए वहाँ पर बैंड बाजा लगाकर, डीजे बाजे लगाकर अल्लाह के वली को तकलीफ देते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। अल्लाह अकबर, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे रसूल आज़म ने हदीस कुदसी बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली को तकलीफ दी है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यार दीवानों, उर्स तो बनाया जाता है, संदल तो निकाला जाता है, लेकिन संदल की जगह पर जब मजार पर फाते देने की बारी आती है तो सिर्फ 2-3 लोग आगे आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, 4-5 आगे आते हैं। मुझे बताओ तो सही, ये किसका तरीका है? ये किसका तरीका है? संदलों के अंदर बाजा बजाना ये सुन्नियों का तरीका नहीं है, बल्कि सुन्नियों का तरीका तो ये है कि उनके नाम के चर्चे किए जाए, उनके नाम की फातिहा खानी की जाए, उनके नाम के लंगर लुटाए जाए, उनके नाम से कुरान की तिलावत की जाए, उनको इसाले सवाब किए जाए, उनके नाम का वसीला देकर रब्बे काबा की बारगाह में दुआ मांगना ये सुन्नियों का तरीका है। ये बाजा गाजा लगाकर संदल निकालना ये हमारा तरीका हरगिज नहीं है। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यार दीवानों, इसीलिए सुन्नियों होश के नाखुन लो, होश संभालो, क्योंकि ये रसूल आज़म का दीन है, ये रसूल पाक का दीन है। इसीलिए वह बड़ा हमको ताना देता है, हम पर ताने कसते हैं कि तुम भी तो गुस्ताखी करते हो। मैंने कहा ये गुस्ताखी करने वाले हमारे साथ नहीं है, हमारा साथ अगर देखना है तो बरेली की गलियों में चला जाओ, बरेली की गलियों में चला जाओ। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यार दीवानों, बुजुर्गान दीन का एहतराम करें। अल्लाह अकबर। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि मजार पर जाने का तरीका क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि मजार से 4 हाथ छुट्टा होना चाहिए, 4 हाथ छुट्टा होकर वहीं से सलाम दुआ करे, वहीं से सलाम भी पेश करे और दुआएं भी मांगे। मजार पर जाने का तरीका आला हजरत ने ये बताया है, हमको ये सिखाया है कि मजार पर जाना भी तो इस अंदाज से जाना, लेकिन तुम किस अंदाज से जा रहे हो, तुम किस लहजे से जा रहे हो? तुम बाजा बजाकर लोगों को तमाशा दिखाकर, और अल्लाह अकबर, उर्स के अंदर होता क्या है? जहाँ कहीं देखो बदनिगाही होती है, जहाँ कहीं देखो शोर शराबा होता है, जहाँ कहीं देखो ऐसा लगता है कि ये किसी मुसलमान का उर्स है। हर किसी नहीं लगता ये किसी मुसलमान का उर्स है। मुसलमानों के उर्स के अंदर तो रब्बे काबा की कसम रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसी खुराफातें कर करके औलिया इकराम को नाराज कर दिया है, बुजुर्गान दीन को नाराज कर दिया है। आला हजरत अल-मलफूज़ कामिल किताब के अंदर फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन का अब तवज्जो हम पर से इसलिए हट गई है क्योंकि लोगों ने उर्स के मौक़ों पर ऐसी बेदबियाँ की है, ऐसी गुस्ताखियाँ की है, ऐसी बैंड बाजा लगाकर उनको तकलीफें पहुँचाई है कि बुजुर्गान दीन ने अभी हम पर से तवज्जो हटा ली है। वो आला हजरत फरमाते हैं वरना पहले की तरह अब उनका करम कहाँ बरसता है। अल्लाह अकबर। नहीं तो पहले तो होता यह था कि कोई उनके कब्र के पास चला जाता था तो वो चोर भी होता था तो अपने वक्त का कुतुब बन के निकल जाया करता था। अगर वो चोर होता तो अल्लाह के करीब
करीब हो जाया करता। और मुझे बता तो सही, संदलों में बाजा बजाकर कौन अल्लाह के करीब होने वाला है, कौन नमाजी बनने वाला है, कौन अल्लाह का जिक्र करने वाला है, कौन रसूल आजम की सुन्नतों को अपनाने वाला है। इसीलिए कहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, अभी वक्त है सुधर जाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी वक्त है सुधर जाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। रसूल आजम के साँचे में ढल जाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। रसूल आजम के साँचे में ढल जाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यार दीवानों, हर वो चीज़ जिससे इस्लाम में कोई खराबी पैदा हो, वो इस्लाम में हराम 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 होती है। और वो चीज़ जिससे लोग अल्लाह उसके रसूल से करीब हो जाए, अल्लाह उसके रसूल के करीब हो जाए, वो चीज़ जायज़ होती है और वही चीज़ तुमको सवाब की तरफ ले जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मज़ारों पर मत जाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम उर्स ना मनाओ, उर्स मनाओ, लेकिन पहले देखो उसका तरीका क्या है, उसकी आदाब क्या है, उसके तरीके क्या है, और मैं रब्बानीन से मालूम करो। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यार दीवानों, बुजुर्गाने दीन को तकलीफ दे के मत अपने घरों को वीरान करे, बल्कि अपने घरों को आबाद करना है, आबाद करना है। तो उनके नाम की कुरान की तिलावत की जाए, उनके नाम से दुआएं की जाए। अल्लाह अकबर। अगर किसी बुजुर्गान दीन ने तेरी एक भी दुआ को सुन ले तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि कयामत तक खाता रहेगा, तेरे घर से खत्म नहीं होगा, तेरे घर से कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर उनको तकलीफ पहुंचा दी, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उन्होंने गुस्से की नजर तेरे घर पे डाल दी, तो पूरी कायनात मिल के भी तुझे उनके गजब से कोई नहीं बचा सकता है। पूरी कायनात मिल के भी तुझे कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए बुजुर्गाने दिन की जिंदगियों को देखे, वो लोगों का मामला तो ये था, इन लोगों का मामला ये था कि वो लोगों में गाफिल होने की वजह से बस्तियों को छोड़कर जंगलों में इबादत की तरफ चले जाया करते थे। अल्लाह को याद करने के लिए, अपनी आखिरत की फिक्र करने के लिए गांव को छोड़कर, बस्तियों को छोड़कर, लोगों को छोड़कर वो जंगलों में निकल जाया करते थे, ताकि वहाँ कोई वहाँ पर उनको डिस्टर्ब ना कर सके, ना ही किसी तरह से उनके पास शोर शराबा हो, वो जैसे तैसे कर सके। अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया करते थे, अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश किया करते थे। जब उन्होंने ये कोशिश की है, तभी कुरान ने उनको कहा रदियल्लाहु ताला अन्हुम व रदवान, यानी वो अल्लाह से राजी हो जाते हैं और अल्लाह उनसे राजी हो जाता है। अब वो अल्लाह का वली अपने दिल में दुआएं सोचता रहता है, उसके सोचने से पहले रब्बे काबा उसे वो अता कर देता है। अपने किरदार को देखो, अपने गिरेबान में झांको, सुन लियो, अपने होश के नाखुन लो, रसूल आजम की गुलामी करो, रसूल पाक की गुलामी करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। किसी वली को तकलीफ देकर हर की जन्नत की ख्वाहिश ना करना, हर की जन्नत की तमन्ना ना करना। अगर तुम ये सोचोगे कि अल्लाह के वली को सताया जाए, अल्लाह की वली को तकलीफ दी जाए, और ऊपर से ये भी ख्वाहिश करोगे कि इनकी वजह से बख्शिश हो जाएगी, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि अल्लाह के वली को अगर खुश ही करना है, उनको राज़ी ही करना है, तो कुरान की तिलावत से ही, उनकी मज़ारों पर कुरान की तिलावत करना ही हम सुन्नियों का असल मकसद होना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, हमने क्या किया? उर्स के मामलात पर हमने बदनिगाही को आम किया, उर्स के मामलात पर हमने शराब नोशी को आम किया। संदलों के अंदर अक्सर बेशतर जितने लोग होते हैं, आधे से ज़्यादा शराब पीने वाले होते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर लोग शराब पीने वाले होते हैं। ये सुन्नियों का मामला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, इन चीज़ों से बचे, इन चीज़ों से दूर रहे। आपको अपने रब को मुंह दिखाना है, उस बुजुर्गान दीन को मुंह दिखाना है। अगर जरा से भी उनको तकलीफ पहुंचती है तो हमारे घर को वीरान हो जाएंगे, हमारे घरों से बरकतें उड़ जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम को वो ताकत अता फरमाई है कि वो जमीन के ऊपर होते हैं फिर भी करिश्मे जाहिर होते हैं,
وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں پھر بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہے. وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں, ہم کو دیکھتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں وہ سب وہ قبر کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اندر سے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا کس نیت سے آتا ہے, میرے پاس آنے والا کس انداز سے آتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں, ان کے دربار میں جانا ہے تو سب سے بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے دربار میں جانا ہو تو اس انداز سے جانا جس انداز سے کوئی غلام اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں جا کر ان سے دعائیں کرائے, ان سے دعائیں لے اور ان کی خدمت کر کے ان کے نام کے وسیلے سے دعا مانگ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی بخشش کی دعائیں مانگی جائے, اپنی آخرت کی فکر کی جائے. لیکن 1-2 گھنٹے کی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہرگز کسی اللہ کے ولی کو تکلیف دینے میں آپ کسی طرح کا حصہ نہ لیں. اور شادیوں کے اندر بھی بینڈ باجا ہرگز نہ لگائے, کیونکہ یہ ہم سنیوں کا کام نہیں ہے, یہ رسول اعظم کے غلاموں کا کام نہیں ہے. آج سنیوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ بتا تو صحیح اللہ کو مانتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہو. رسول اعظم کو مانتا ہے, وہ کہتا ہے رسول اعظم کو مانتا ہو. بزرگان دین کو مانتا ہے, وہ کہتا ہے بزرگان دین کو بھی مانتا ہو. اولیاء اکرام کو مانتا ہے, کہتا ہے اولیاء اکرام کو بھی مانتا ہو. علماء اکرام کو مانتا ہے, کہتا ہے علماء اکرام کو مانتا ہو. لیکن سنی اس بات میں کمزور ہو جاتا ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ بتا اللہ کی بات کو مانتا ہے, وہ نہیں مانتا ہے. رسول اعظم کی بات کو مانتا ہے, نہیں مانتا ہے. بزرگان دین کو مانتا ہے, بزرگان دین کی باتوں کو مانتا ہے, نہیں مانتا ہے. اور علماء اکرام جو ان کے لیے ہدایت کی روشنی ہے, علماء اکرام جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے, کانٹریکٹ پیدا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے, ان کی بات بھی نہیں مانتے. سن لیو ہمارا مقصد آپ کو طنز کرنا نہیں ہے, آپ کو برا کہنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم صحیح طور پر رسول اعظم کے غلام بن جاؤ, رسول اعظم کے غلام بن جاؤ. کیونکہ جب کوئی رسول اعظم کا غلام بنتا ہے تو وہ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے, اس کے قدموں کی چلنے کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے. اسی لیے سنیو, اپنے آپ کو سنبھالو. عرس کے نام پر کسی طرح کی گستاخانہ, کسی طرح کی گستاخی اور بے ادبی والی جگہ پر نہ جائے اور دوسروں کو بھی روکے. یہ ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں, اگر اتنے پیسوں کا ہم سندلوں کے اندر بینڈ لگاتے ہیں, 10-15 ہزار کا, 20-30 ہزار کا ہم سندلوں میں بینڈ لگاتے ہیں یا شادیوں میں بینڈ بجاتے ہیں, اگر اسی کے برعکس بینڈ کو ہٹایا جائے اور اس کی جگہ پر کسی اللہ کے ولی کو لایا جائے یا کسی پیر کو لایا جائے تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اللہ پاک نے ان کو مرتبہ دیا ہے کہ جس بستی میں چلے جاتے ہیں اللہ پاک قبرستان کے 40 مردوں کے اوپر سے 40 دن کے لیے قبر کا عذاب ہٹا دیا کرتا ہے. یہ ایک عالم کا پاور ہے کہ ایک عالم دین اگر کسی بستی میں چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے قدموں کی برکت سے قبرستان والوں کے عذاب کو ہٹا لیا کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ, اگر ہم اسی کے برعکس اگر سندر کا باجا ہٹا کر اس جگہ پر جلسہ کر دیا جائے, اس جگہ پر جلسہ رکھا جائے تو بتاؤ ہمارے گاؤں میں کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. ایک عالم کا یہ پاور ہے, تو اتنے سارے عالم اگر ہمارے گاؤں میں ان کے قدم پڑ جائے گے, ہمارے گاؤں میں کتنی برکتوں کا نزول ہوگا اور نہ جانے کتنے ہی مردوں کے اللہ پاک بخشش فرما دے گا. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں, اس دور میں رہنا ہے تو علماء اکرام سے جڑے رہے, اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑے. آج کل تو معاملہ
मामला ये होता गया है कि जिसके मन में जो आता है वही करता चला जा रहा है। आज तो बच्चे को भी बताया जाए कि ये ना कर वो ना कर तो बच्चा भी अपने मन का मालिक हो गया है, बच्चा भी अपने मन का राजा हो चुका है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, इनमें लगाम डालो, अपने आप पर लगाम डालो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, क्योंकि अल्लाह पाक ही है, अल्लाह पाक ही है कि हमारी हर मुसीबतों को दूर फरमाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बंदा ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि ना वहाँ कोई दोस्त होता है, ना रिश्तेदार होता है, ना कोई यार होता है, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर अचानक वो मुसीबत से कैसे निकल जाता है, तो वो जो बचाने वाला है उसी जात को अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, उसी को अल्लाह पाक कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, इसीलिए किसी तरह की किसी बेदबी के काम में आपको हिस्सा नहीं लेना है, किसी तरह की बेदबी वाली जगह पर आपको नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह रसूल का जिक्र होता है तो वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होया करता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। और इसी के बरअक्स अगर किसी जगह पर अल्लाह रसूल की या बुजुर्गान दीन के गुस्ताखी होती है तो वहाँ अल्लाह का कहर नाजिल होता है, अल्लाह का कहर नाजिल होता है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, अपने अंदर आजीज़ी पैदा करो, अपने अंदर अपनी तबीयत में नरमाहट पैदा करो, अपनी तबीयत को जरा ठंडी करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि हमको रसूल आज़म का गुलाम किस अंदाज से बनना है। हम कोई ढोल बाजे तमाशे वाले नहीं है, बल्कि हमारा दीन तो हमको अखलाक सिखाता है, हमको अदब सिखाता है। एक शख्स रसूल आज़म की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि इस्लाम के अंदर अदब का क्या मकाम है, इस्लाम का क्या अदब का क्या मकाम है। तो रसूल आज़म फरमाते हैं कि अरे वो शख्स तू पूछता है कि अदब का इस्लाम के अंदर क्या मकाम है, अरे इस्लाम तो सर से पाँव तक, पाँव से लेकर सर के बाल तक पूरा अदब ही का नाम इस्लाम है। इस्लाम कहते ही उसे है जो अदब वाला होता है, मुसलमान उसे ही कहा जाता है जो अल्लाह रसूल का और तमाम जितने अल्लाह रसूल के अलावा जितने बुजुर्गान दीन है, उलमाए दीन है, जो इन सब का अदब करता है। सही मानों में आज के पुरफितन दौर के अंदर वही सच्चा मोमिन है, वही सच्चा बरेलवी है, वही सच्चा सुन्नी है। और जो इनसे हट कर काम करे, अल्लाह अकबर। अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं इतनी गुजारिश जरूर करूँगा कि किसी तरह की बेदबी वाली जगह पर हरगिज़ ना जाए, किसी तरह के बेदबी वाले कामों में हरगिज़ हिस्सा ना ले। अगर हिस्सा ही लेना है तो नेक कामों में ले। आप देखो तो सही, आप संदल की जगह बाजा को हटा कर अगर जलसा रख देते हो और जलसा रखने के बाद अगर वहाँ पर एक बंदा भी अगर तेरी वजह से एक बंदा भी सही लाइन पे आ जाता है तो कल क़यामत के दिन वही बंदा तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, वही बंदा तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। और एक बंदा ही तुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, इसलिए पुरखुलूस गुजारिश है कि ऐसे किसी काम में बिल्कुल हिस्सा ना ले जिसमें बुजुर्गान दीन को तकलीफ हो, अल्लाह रसूल को नाराज़गी हो। ऐसे किसी काम में हिस्सा नहीं लेना है। हिस्सा लेना है तो फिर उस काम में लो जिससे हमको भी फ़ायदा हो और हमारी कौम को भी फ़ायदा हो। हमको ऐसे कामों में हिस्सा लेना है जिससे लोगों के ताल्लुक अल्लाह पाक से मजबूत हो जाए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का हमारा दिमाग बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और अगर हाँ किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो हमारी वजह से किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर जाओ, बिल्कुल जाया करो। हर अल्लाह के वली को, जहाँ अल्लाह का वली मौजूद है उसकी मज़ार पर जाया करो और दुआएं मांगा करो। बिल्कुल दुआएं मांगने की इजाज़त है, उनकी चादर चूमने की भी इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की बेदबी करने की यह शरीयत में इजाज़त हरगिज़ नहीं है। लिहाजा इसका खास ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में या आपके सुनने में जो भी गलतियाँ खता हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने
فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی۔